1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित ल्यूक 1 चैप्टर 57 से 80 वर्स, ड्यूटरनॉमी 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 57 वचन से 80 वचन तक और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 1 चैप्टर 57 वर्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ल्यूक 1 चैप्टर 57 वर्स। Now Elizabeth's full time came that she should be delivered, and she brought forth a son. And her neighbors and her cousins heard how the Lord had showed great mercy upon her, and they rejoiced with her. And it came to pass that on the 8th day they came to circumcise the child, and they called him Zacharias, after the name of his father. And his mother answered and said, Not so, but he shall be called John. And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name. And they made signs to his father how he would have him called. And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marveled all. And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake and praised God. And fear came on all that dwelt round about them, and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea. And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be? And the hand of the Lord was with him. And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he sware to our father Abram, that he would grant unto us, that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day, saying from on high, hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, or guide our feet into the way of peace. And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his showing unto Israel. लूका रचित सुसमाचार 57 वचन से लेकर
80 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं? तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तो उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। जकरिया का स्तुतिगान। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी 8 चैप्टर, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर। Introduction, 8th chapter. An exhortation to obedience in regard of God's mercy and goodness in his dealings with Israel, the evil of worshipping other gods. All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldst keep his commandments or no. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doeth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doeth man live. Thy raiment waxed not old upon thee,
neither did thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, and a land of brooks of waters, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates, a land of oil, olive, and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and draught, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy later end. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish, as the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Chapter 9, Introduction. Moses dissuaded them from the opinion of their own righteousness by rehearsing their several rebellions, his prayer for them. Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven, a people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, who can stand before the children of Anak? Understand therefore this day that the Lord thy God is he which goeth over before thee as a consuming fire. He shall destroy them, and he shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. Speak not thou in thine heart after that the Lord thy God hath cast them out from before thee, saying, for my righteousness the Lord hath brought me into possess this land, but for the wickedness of these nations the Lord doeth drive them out from before thee. Not for thy righteousness or for the uprightness of thine heart doest thou go to possess their land, but for the wickedness of these nations the Lord thy God doeth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.
Understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness, for thou art a stiff-necked people. Remember and forget not, thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness, for the day that thou didst depart out of the land of Egypt, until ye came into unto this place, ye have been rebellious against the Lord. Also in Horeb ye provoked the Lord to wrath, so that the Lord was angry with you to have destroyed you. When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you, then I abode in the mount 40 days and 40 nights. I neither did eat bread nor drink water, and the Lord delivered unto me 2 tables of stones written with the finger of God. And on them was written according to all the words which the Lord spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me the tables, 2 tables of stone, even the tables of the covenant. And the Lord said unto me, Arise, get thee down quickly from hence, for thy people, which thou hast brought forth out of Egypt, have corrupted themselves. They are quickly turned aside out of the way which I commanded them. They have made them a molten image. Furthermore, the Lord spake unto me, saying, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. And let me alone. Behold, it is a stiff-necked people. Let me alone, that I may destroy them and blot out their name from under heaven. And I will make of thee a nation mightier and greater than they. So I turned and came down. So I turned and came down from the mount, and the mount burnt with fire, and the 2 tables of the covenant were in my 2 hands. And I looked, and behold, ye had sinned against the Lord your God, and had made you a molten calf. Ye had turned aside quickly out of the way which the Lord hath commanded you. And I took the 2 tables and cast them out of my 2 hands, and break them before your eyes. And I fell down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights. I did neither eat bread nor drink water, because of all your sins which ye sinned in doing wickedly in the sight of the Lord, to provoke him to anger. For I was afraid of the anger and hot displeasure wherewith the Lord was wrath against you to destroy you. But the Lord hearkened unto me at that time also. And the Lord was very angry with Aaron to have destroyed him. And I prayed for Aaron also the same time. And I took your sin, the calf which ye had made, and burned it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust. And I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount. And at the Taberah, and at Massa, and at Kebroth Hattahava, ye provoked the Lord to wrath. Likewise, when the Lord sent you from Kadesh Barnea, saying, Go up and possess the land which I have given you, then ye rebelled against the commandment of the Lord your God, and ye believed him not, nor hearkened to his voice. Ye have been rebellious against the Lord from the day that I knew you. Thus I fell down before the Lord 40 days and 40 nights, as I fell down at the first before the Lord had said he would destroy you. I prayed therefore unto the Lord, and said,
O Lord God, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand. Remember thy servants Abraham, Isaac, and Jacob. Look not unto the stubbornness of this people, not to their wickedness, nor to their sin, lest the land whence thou broughtest us out say, because the Lord was not able to bring them into the land which he promised them, and because he hated them, he hath brought them out to slay them in the wilderness. Yet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy mighty power and by thy stretched out arm. Chapter 10, first verse say, Introduction. God's mercy in restoring the two tables, in continuing the priesthood, in separating the tribe of Levi, and hearkening to Moses' sweet for the people. First verse say, At that time the Lord said unto me, Hew thee 2 tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood. And I will write on the tables the word that were in the first tables, which thou breakest, and thou shalt put them in the ark. And made him an ark of shittim wood, and hewed 2 tables of stone like unto the first, and went up into the mount having the 2 tables in mine hand. And he wrote on the tables according to the first writing the 10 commandments which the Lord spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly. And the Lord gave them unto me. And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made, and there they be as the Lord commanded me. And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jachan to Messera. There Aaron died, and there he was buried, and Eleazar his son ministered in the priest's office in his stead. From thence they journeyed unto Godgada, and from Godgada to Jotbath, a land of rivers of waters. At that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless in his name unto this day. Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren, the Lord in his inheritance, according as the Lord thy God promised him. And I stayed in the mount according to the first time 40 days and 40 nights. And the Lord hearkened unto me at that time also. And the Lord would not destroy thee. And the Lord said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I swear unto their fathers to give unto them. And now, Israel, what doeth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee with thee this day for thy good. Behold, the heaven and the heavens of heavens is the Lord's thy God, the earth also with all that therein is. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. For the Lord your God is God of gods, and the Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger in giving him food and raiment.
Love ye therefore the strangers, for ye were strangers in the land of Egypt. Thou shalt fear the Lord thy God, him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. Thy fathers went down into Egypt with 60 persons, and now the Lord thy God hath made thee as the stars of heaven are for multitude. व्यवस्था विवरण हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से 8 अध्याय से 9 और 10 अध्याय तक। उत्तम देश, पहले वचन से, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूँ, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। जहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी, 11 वचन से आगे। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक के चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो ले और उनकी उपासना और उनकी दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। लोगों की अनाज्ञाकारिता 9 अध्याय पहले वचन से आगे। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसीलिए आज तू यह जान ले कि जा तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। हालेलुया। और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हालेलुया। 4 वचन से आगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों को दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। थैंक यू आबा, थैंक यू। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तुम मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझे से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उलट पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारे आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण
जिससे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी। मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया, और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ, उस दिन से तुम यहोवा से बलवाही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुँह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसे ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है, वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें इस देश में जिसके देने की का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका, और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनकी तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। 10 अध्याय पत्थर की नई पटियाएं। पहले वचन से, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ी, और उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। तब इस्राएली याकानियों के कुओं से कुछ करके मोसेरे तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसको वहाँ मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजार उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहाँ से कुछ करके गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियाँ हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे, और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तो इन लोगों की अगुवाई कर, और ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर की मांग।
12 वचन से आगे, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनके संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आज्ञा को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ के वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। हालेलुया। 2 years Bible reading plan. Matthew 23 chapter 23 verse से 39 वर्स, एक्सोडस 26 चैप्टर। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 23 वचन से 39 वचन तक और निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल टाइमिंग में हमने इस बाइबल रीडिंग को करना है। इसके वचन जब हमारे मनों के गहरी बात को परमेश्वर कुछ कहने के लिए वचनों को कनेक्ट करेगा, तो उसको नोट्स बनाकर लिख कर रखना है, ताकि जब हम नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स के अनुसार हमारे जीवन में उसको हम लागू करेंगे और उस तरह से हमारा जीवन एक अलग पर्सनालिटी में, व्यक्तिमत्व में बदलता जाएगा, और जिसका कारण बदलने का कारण वचन से ढला गया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे काम करने के योग्य हो जाते हैं, और ऐसे में परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिला हुआ है कि हम ऐसा लाभ उठा सकते हैं उसके वचनों का। हमारा एक पर्सनालिटी परमेश्वर का वचन से ढला हुआ पर्सन हम बन सकते हैं, तो निश्चित हमने इसका लाभ उठाना है। 2 साल के अंत में हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति पाएंगे। प्रभु यीशु हम सबको इस बात में अनुग्रह करे और शांति से इस बात को पूरा करके दे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।